Yes, let's sir. let's get started. Yes, sir. We can start now. Yeah. Fine. So today's topic is about building up your vocabulary through root words. So Yes, as sir. we know that root words are the very basic part of any word. So a word is typically, yeah, I'll just start it once again. Okay. So yeah. So today's topic is about root words. So root words are basically the basic part of a word. It is basically a root word that leads to the creation of lot of words. So you can say, as it is visible on the screen, a root word is Yes, a sir. word that has prefix and a suffix, Okay. राइट. तो मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बताया था कि एक वर्ड जो होता है उसको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. तो एक तो उसका पार्ट होता है, उसका मूल पार्ट यानी बेसिक पार्ट, इट इज कॉल्ड एज रूट वर्ड, राइट. Yes. एंड उसके बाद उसके पहले जो लगता है उसको कहते हैं प्रीफिक्स, एंड उसके Prefix. बाद में जो लगता है उसको कहते हैं सफिक्स, Suffix. right? So a word is made up of three parts. Sometimes it's only two, but typically a word is made up of three parts. First is the root word. So we had seen a lot of root words in my previous session. We had seen some Yes, sir. 18 to 19 root words, right? तो हम Yes, सबको sir. सबको रिकॉल करेंगे. एंड we'll Okay, also sir. see some prefix and suffix. ठीक है. Yes, तो sir. अब जब हमने वर्ड फॉर्मेशन हमने जब सीख लिया, तो फिर हमको पता चल जाएगा कि एक इंग्लिश का वर्ड कैसे बनता है. Yes, sir. फिर हम रूट वर्ड्स को ही लेके बाकी डिफिकल्ट वर्ड्स को अनलॉक कर सकते हैं. ये मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, राइट. चलिए. Okay, sir. तो अब हम आगे वाले जो स्लाइड्स हैं उसमें देखेंगे कि किस तरह के रूट वर्ड्स हैं, और उसमें से हम रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स और सफिक्स आइडेंटिफाई करेंगे. सो रूट वर्ड इज अ वर्ड दैट हैज अ प्रीफिक्स and a suffix both attached to it, sometimes only one attached to it, and when we combine these together, a new word is formed which we call as an English word, and it makes sense also, right? Yes, sir. Okay, I think we got one more student. Let me see who is there. Harshini V. Okay. So I think we'll have to start it once again. Just let me check, because I think Sir, these students are also preparing for CSAAT. yeah, they're all part of your class. So Okay, I sir. don't know why the other two have not joined, but they were supposed to Yes. join it today. Anyway, Harshini, are you able to hear me? Harshini, can you switch on your camera? Are you able to hear me? She left. Yeah. I don't know what is this. तो Zoom का लिंक तो सर ने दिया होगा. Anyway, let's see. So coming back to the topic once again, English word is basically made up of three parts: root Yes. word, prefix, and suffix. Suffix. So now we'll see a number of words and we'll try to identify what is the root word, what is the prefix, and what is the suffix. Okay. So what you can do is you can take screenshots wherever you feel. You can take screenshots and later on you can make notes. It is very important. ठीक है. Otherwise क्या होगा कि आप भूल जाएंगे चीजों को, है ना. तो root Sir, words. in between I used to write it. Yeah, that's great. So do you have a paper and pen ready with you? Because since Yes, you are in sir. the village, Yes, sir. ठीक है, that's very good. Yes, sir. I bring all those. Okay. So what time do you want the session to end? 8:45 or 8:30? 8:45. 8:45. ठीक है. So अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन कौन से रूट वर्ड्स हैं, कौन कौन से प्रीफिक्स है, कौन कौन से सफिक्स है. या ठीक है. So now we have three words: unzipped, searched, and enriched. So suppose I do not know the meaning of these three words. So how will I know the meaning of these three words? By using root word, prefix, and suffix formula. See, now the red part is the root word. मतलब जो ये रेड पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, रेड से अंडरलाइन किया हुआ, ये इसका मूल वर्ड है. और इस रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले सेशन में देखा था, राइट. तो फर्स्ट जो वर्ड है वो है अनजिप्ड.
इसके अंदर जो रूट वर्ड है वो है जिप। ठीक है, जिप होता है चेन, Yes, जो भी sir. अपने कपड़े में लगाते हैं। अब हाँ, उसके आगे अगर yes, मैंने एक नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दिया, नेगेटिव प्रीफिक्स क्या होता है? इन, अन। तो जैसे सफिशिएंट के आगे इन लगा दिया तो इनसफिशिएंट हो गया। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, yes, sir. इन लगा दिया तो इनसफिशिएंट यानी कि अपर्याप्त। तो जिप मतलब कि अपने किसी चीज को जिप से बंद किया, एक बैग, बैग के ऊपर जिप लगी रहती है ना, तो उसको जिप से बंद किया। अनजिप किया मतलब खोला। तो व्हेन वी पुट अ नेगेटिव प्रीफिक्स इन फ्रंट ऑफ द रूट वर्ड, द मीनिंग इज कंप्लीटली चेंज। सो जिप मींस बंद करना, अनजिप मतलब खोलना, राइट। अब इसमें ईडी लगा है तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस, है ना। तो टेंसेस Yes, कितने sir. होते हैं? प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता Past, है और फ्यूचर टेंस future, होता है। तो जो पास्ट टेंस होता है वो क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल, भूतकाल। और जो वर्तमान उसको, वर्तमान को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस, राइट। present, और फ्यूचर को क्या बोलते हैं हिंदी में? भविष्यकाल. भविष्यकाल। तो अगर ईडी लगा है तो इसका मतलब है कि ये भूतकाल में हुआ है, मतलब कि ये एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अनजिप्ड Yes, मतलब, अब जैसे मेरे को मान लो अनजिप्ड का मतलब नहीं मालूम था, लेकिन मुझे मालूम है कि जिप मतलब चेन होता है, तो मैंने इसके अंदर yes, से रूट वर्ड पहचान लिया और पूरा वर्ड जो है अनलॉक कर लिया। ठीक है, सिंपल है ना। अब हम दूसरे वर्ड पे आते हैं। yes, sir. सर्च। सर्च के अंदर कौन सा रूट वर्ड है बेटा, बताओ नेहा। Sir, ED, नहीं, रूट वर्ड, रूट। ARC. नहीं, जो देखो जो रेड से अंडरलाइन है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ, वो रूट वर्ड है पूरा। yes, sir. जो रेड से अंडरलाइन है वो पूरा अच्छा. रूट वर्ड है। तो हम्म. इसके अंदर जो रूट वर्ड है वो है सर्च। सर्च का मतलब क्या होता है हिंदी में? ढूंढना. ढूंढना। तो इसका जो रूट वर्ड है वो है सर्च, और ईडी लगा है मतलब कि ये भूतकाल में हुआ है। So, हाँ, sir, it is not necessary that the root word will come in between only. It can be in या इट कैन, starting also. एग्जैक्टली। अब इसमें देखो जो दूसरा वाला वर्ड है उसके अंदर कोई प्रीफिक्स है ही नहीं, इसमें सिर्फ सफिक्स लगा हुआ है, ईडी, है ना। जो इसके Yes, पहले sir. वर्ड हमने जो देखा था अनजिप्ड, इसमें प्रीफिक्स कौन सा था? Hmm. अन। और सफिक्स क्या था? ईडी। और रूट वर्ड क्या था? Yes, जिप। sir. तो मैंने जैसे Zip. बताया ना, अ वर्ड इज मेड ऑफ थ्री पार्ट्स, प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स। प्रीफिक्स प्री Yes. मतलब पहले आएगा, एंड पहले. सफिक्स मतलब बाद में आएगा। ठीक है ना। अब कुछ Yes, वर्ड्स होते sir. हैं जिसमें कि प्रीफिक्स होता ही नहीं है, या तो देखो कभी कभी क्या होता है कि रूट वर्ड भी अपने आप में एक वर्ड होता है। जैसे अगर मैं सिर्फ सर्च बोलूं, SEARCH, Yes, sir. तो अपने आप में एक वर्ड बन जाएगा ना। Yes, sir. तो Sir, उसके लिए, yesterday we did extra. Extra is हाँ, also a root word. या एंड एक्स्ट्रा अपने आप में भी एक वर्ड है। अब हम, मैं अगर सिर्फ हाँ, yes, एक्स्ट्रा sir. बोलूं तो इसका मतलब कि उसके अंदर ना प्रीफिक्स लगा है ना सफिक्स, लेकिन इट मेक्स सेंस, देयरफॉर इट इज अ वर्ड इन इटसेल्फ। समझ गए ना आप। Yes, sir. तो रूट वर्ड अपने आप में भी एक वर्ड होता है, उसके पहले एक नेगेटिव प्रीफिक्स लग जाए तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है ना। तो Yes, sir. और उसके पीछे कुछ लग जाए तो वो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, यानी कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में चेंज हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई बेटा। Yes, तो yes, अब sir. आप मेरे को बताओ कि एक वर्ड है, उसकी डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज अ वर्ड मेड अप ऑफ? Sir, a word is made up of sir, what we call three things, पार्ट्स, पार्ट्स। three parts. One हाँ, is the root word and यस, the prefix and suffix. यस, Prefix means the word which comes before the root word. एग्जैक्टली, Suffix means the word which comes after the root word. वेरी गुड। ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया। अब हमको जब भी कोई डिफिकल्ट वर्ड मिलेगा तो हम सबसे पहले उसमें पहचानने की क्या कोशिश करेंगे? Which one is the root word? एग्जैक्टली exactly. और एक रूट वर्ड का अगर हमने मतलब जान लिया, जैसे कि एक्स्ट्रा, है ना, या फिर लॉजी, तो हम बहुत सारे वर्ड्स को Hmm. अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है। Hmm. अब देखो बेटा क्या करना है, जैसे कि आप जैसे पढ़ाई करते करते 10 बजे थक गए, है ना, 10-11 बजे तक थक गए, और जब Yes. आप सोने जाते हैं तो नेचुरली अपना हम सब लोग अपना व्हाट्सअप वगैरह चेक करते हैं। तो जो मैं आपको Yes. यूट्यूब के लिंक भेजू ना, उसमें 5-5 मिनट की वीडियो है, उसको देखना। Uh-huh. तो वो चीज रिकॉल हो जाएगी और आपकी परमानेंट मेमोरी में बस जाएगी, मतलब फिर आप उसको जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है बेटा, एक बार करके Yes. देख लेना। आपको आपको मतलब Okay, sir. विदाउट एनी टेंशन आपके दिमाग में ये सारी चीजें बस जाएंगी, है ना। और मैं एकदम हिंदी में बताया है, तो कोई भी अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होगी तो प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। अब हम तीसरे वाले को Okay, लेते sir. हैं। तो पहले दो तो जो बड़े आसान थे, अनजिप्ड और सर्च। अब तीसरा है इनरेज्ड, है ना। अब इसमें जो रूट वर्ड है वो है रेज, RAGE। रेज का इंग्लिश में मतलब होता है, तुमको मालूम है रेज का मतलब क्या होता है? No, sir. रेज मतलब गुस्सा। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ रेज। रेज मतलब गुस्सा, Yes, sir. मतलब गुस्से का एक्सट्रीम फॉर्म। एक तो होता है हल्का सा गुस्सा, है ना। अगर Hmm. मैं बोलूं हल्का सा गुस्सा मतलब कि रूठना,
और अगर बोलूं कि एक्सट्रीम गुस्सा मतलब रेज, जिसमें आदमी गुस्से के कारण पागल हो जाता है, तो उस डिग्री ऑफ गुस्से को बोलते हैं रेज। तो फिर सर एंग्री का मतलब? हाँ देखो, जैसे क्या होता है कि पानी, गर्म पानी, मैंने बोला गर्म पानी गुनगुना भी हो सकता है, गर्म पानी खौलता हुआ भी हो सकता है, दोनों गर्म पानी है ना। यस सर। तो खौलते हुआ पानी जो होता है उसका 100 डिग्री टेम्परेचर होता है, और गुनगुना पानी मतलब कि हल्का सा गर्म, लेकिन दोनों है तो गर्म ना। तो इसी तरह एंग्री बॉइल भी वाटर। है ना, एंग्री भी गुस्सा है, रेज भी गुस्सा है। इसमें डिग्री का फर्क है, रेज मतलब कि पागलपन के हद तक गुस्सा, और एंग्री मतलब गुस्सा, नॉर्मल गुस्सा, है ना। सर आप मैं लिख लेती हूँ। हाँ, और ये क्या यस होता है सर। बेटा कि ये सब जब आप इंग्लिश की चीजें सुनेंगे ना, ये अपने आप चीजें क्लियर होंगी। तो मैंने आपको जैसे 4 यस टिप्स सर। दिए थे ना, कि इंग्लिश हमको सुनना भी है, रीड भी करना है, और बोलना भी स्पीक। है, और उसके हाँ। बाद लिखना भी है, डायरी। ये चारों चीजें करोगे ना, तो छोटे छोटे वर्ड्स कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये आपको तीनों वर्ड्स क्लियर हो गए कि अब यस इसको मैं सर। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। अ वर्ड इज बेसिकली मेड अप ऑफ इंग्लिश वर्ड, एंड इंग्लिश वर्ड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज द रूट वर्ड, which is the basic part of the word, and the part which comes before the word is called a prefix, and the part which comes after the word is called a suffix. So we can always break down an English word into 3 parts, which is root word, prefix and suffix. अब हम आगे और एग्जांपल देखेंगे तो ये हमको सदा के लिए याद हो जाएगा. नाउ वी हैव 3 न्यू वर्ड्स. अब आप मुझे बताओगे कि बेटा इसमें कौन कौन से रूट वर्ड्स है. पहला है डिसमाउंट. तो पहले मुझे ये बताओ, डिसमाउंट का मतलब मालूम है आपको? डिसमाउंट? हम्म, नो सर। इसमें एक अब अगर आपको नहीं मालूम ना, तो सबसे पहले इसमें एक रूट वर्ड और प्रीफिक्स ढूंढने की कोशिश करो. सर रूट वर्ड विल बी माउंट। माउंट, एग्जैक्टली. एंड प्रीफिक्स इज डिस। सर डिस डिस. इज आल्सो अ नेगेटिव। नेगेटिव, जैसे कि ऑनेस्ट के आगे डिस लग जाता है तो ईमानदार आदमी बेईमान बन डिसऑनेस्ट। जाता है ना. ऑनेस्ट यस मतलब सर। कि ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब कि बेईमान. तो माउंट का मतलब होता है जैसे घोड़े पे चढ़ना. माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट माउंट मतलब यस चढ़ना. सर। हमने कोई चीज किसी पे माउंट करी मतलब उस पे रखी. और डिसमाउंट तो उसने पूरा मीनिंग ही उलट दिया. तो चढ़ना होता है माउंट, डिस लगा दिया तो क्या हो गया, मतलब उतरना, उतरना। है ना. तो घोड़े सो पे सर चढ़. हाँ, डिसमाउंट, डिसमाउंट मीन्स टू मतलब कम जैसे, बैक। मतलब उतरना नहीं नहीं, जैसे कि घोड़े पे जब चढ़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, माउंट. ही माउंटेड अ हॉर्स. और ही डिसमाउंटेड फ्रॉम द हॉर्स मतलब कि घोड़े से उतरा नीचे. घोड़े से ऊंट के ऊपर चढ़ा, है ना, या बाइक के ऊपर चढ़ा. ही माउंटेड द बाइक मतलब कि बाइक के ऊपर वो बैठा. अब वो डिसमाउंट हुआ मतलब कि वहां से उतरा. तो जब मैं एक नेगेटिव प्रीफिक्स एक वर्ड के पहले लगाता हूं तो उसका मीनिंग उलट जाता है. तो अगर माउंट का मतलब चढ़ना है तो डिसमाउंट का मतलब उतरना उतरना। है ना. ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार है, तो डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान है. बेईमान। तो यानी कि एक नेगेटिव प्रीफिक्स किसी भी शब्द के सामने लगाएंगे उसका मीनिंग उलट जाएगा. जैसे कि डिसऑनेस्ट या सफिशिएंट के आगे इनसफिशिएंट, और सेटिस्फाइड के आगे अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड। है ना. तो नेगेटिव प्रीफिक्स कौन यस। कौन से हुए, डिस, अन, अन। इन, इन। है ना. अब देखो अन का एग्जांपल हाँ आपके यस सामने सर। दूसरे में आ रहा है. अब बताओ इसके अंदर कौन कौन सा है. नंबर 2 अनलोडिंग. Yes, sir. Sir, the root word is load and the prefix is and suffix is ing. वेरी गुड. तो आईएनजी बताता है कि ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है. आई एम वॉकिंग, Yes, sir. आई एम रनिंग, आई एम ईटिंग, मतलब ये वर्तमान काल में हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में. ठीक है. तो आपने बिल्कुल सही पहचाना नेहा कि इसमें जो रूट वर्ड है वो है लोड. लोड का मतलब होता है भार, है ना. अब देखो Yes, sir. इंग्लिश में एक शब्द के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं. Yes, sir. इंग्लिश में एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं. तो लोड का मतलब होता है भार, और लोड का मतलब वो भी होता है कि हमने किसी चीज पे कोई चीज लोड करी, जैसे बंदूक में गोली लोड करी, है ना. या Yes, फिर sir. मैंने फाइल को अपलोड किया, मैंने फाइल को इंटरनेट पे अपलोड किया, और फाइल को Yes, इंटरनेट sir. से डाउनलोड किया. तो लोड मतलब कि भार. तो लोड का मतलब अपलोड भी हो सकता है ना. तो इंग्लिश में एक शब्द का 3 से 4 मीनिंग भी हो सकते हैं. ये हम आगे चल के मैं आपको हाँ दिखाऊंगा, yes, आज ही sir. दिखाऊंगा कैसे हो सकते हैं. तो अब Yes, वापस इस sir. शब्द पे आते हैं, अनलोडिंग. आपने बिल्कुल सही पहचाना. लोड मतलब बाहर, है ना, या फिर किसी चीज पे चढ़ाना, जैसे बंदूक पे गोली Yes. चढ़ाना,
या फिर फाइल चढ़ाना किसी इंटरनेट पे वगैरह। अब अन है तो अन है नेगेटिव प्रीफिक्स, लोड मतलब चढ़ाना, तो अनलोड मतलब कि उतारना। जैसे कि मैंने एक लोडिंग ऑटो में खूब सारे नमक के बोरे रखे और मैंने डेस्टिनेशन पे पहुंच के नमक के बोरे उतार दिए, तो उसको अनलोडिंग कहेंगे, है ना। अब इसमें आईएनजी लगा है, तो जैसे ईडी था भूतकाल, आईएनजी मतलब प्रेजेंट टेंस या वर्तमान। प्रेजेंट। ठीक है। अब तीसरा वाला वर्ड बताओ बेटा, आपके सामने है ट्रैम्पिंग, कोशिश करिए। ट्रैम्पिंग। हाँ सर रूट वर्ड इज ट्रैम्प। ट्रैम्प, ट्रैम्प हाँ बिल्कुल सही है, और आईएनजी इज द एंड सफिक्स, सफिक्स। सो देयर इज नो। ट्रैम्प मींस। हाँ ट्रैम्प मतलब कि चलना, ट्रैम्प मतलब चलना, जैसे कि जैसे सोल्जर्स चलते हैं, है ना, तो ट्रैम्पिंग चलना। ठीक है, तो जैसे चलने को वॉकिंग भी कहते हैं, तो देयर आर अदर मीनिंग्स। ठीक है, तो देयर, अभी क्या होगा कि आप धीरे धीरे जैसे इंग्लिश के भी आपके मैं वोकैबुलरी स्ट्रांग करूंगा तो आपको और चीज समझ में आएंगी। तो अब हम इसको देखते हैं, ये देखो। सर वॉकिंग एंड ट्रैम्पिंग इज द सेम। Yeah, is the same thing. Tramping is when you put down your foot with a lot of noise. जैसे मैं आवाज करके चलूं, हाँ यस। है ना, जब मैं आवाज करके पट पट जैसे चप्पल पहन के आवाज करके चलूं तो ट्रैम्पिंग। ठीक है। और ट्रैम्प क्या होता है? ट्रैम्प वो भी होता है जैसे कि एक आवारा टाइप का पर्सन, ट्रैम्प, है ना। जैसे कि मान लो आपने ये जो लोग घूमते रहते हैं पागल टाइप के, उनको भी ट्रैम्प्स बोलते हैं, है ना। तो आप देखो ये आपके सामने ये तीनों वर्ड्स को मैंने रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया। रेड का मतलब है वो है रूट वर्ड। तो पहले वर्ड में रूट वर्ड है माउंट, नेगेटिव प्रीफिक्स है डिस, दूसरे वाले में रूट वर्ड है लोड, नेगेटिव नेगेटिव प्रीफिक्स है अन और आईएनजी है सफिक्स, और तीसरे वाले में रूट वर्ड है ट्रैम्प और नेगेटिव प्रीफिक्स है, सॉरी सफिक्स है आईएनजी। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया ना बेटा। अब देखो एक और हम ये करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आप बताओ, तीन वर्ड है डिसअपॉइंटमेंट, अनफ्रेंडली, बिलवेड, इसमें क्या क्या है? सर in first one, appointment is a root word. हाँ This is a prefix which is a negative, and ment is a suffix. ठीक है, नेक्स्ट अनफ्रेंडली। Friend is a root word. यस। ly is a suffix and हाँ un is a prefix. हाँ, तो एल वाई क्या हो गई कि उसकी वो एडजेक्टिव में बन गया, है ना। फ्रेंड मतलब कि दोस्त, फ्रेंडली मतलब कि उसकी क्वालिटी हो गई। लास्ट वाला बताइए, बिलवेड। Love is a root word. हाँ, And b is a prefix एंड ईडी इज द and सफिक्स। d is a वेरी गुड। suffix. ठीक है, अब देखते हैं, बिल्कुल सही। अब आप देख रहे हो। हाँ ed हाँ, मतलब ed suffix में भी आएगा और love। हाँ, मतलब वो एक वर्ड के साथ भी बिलवेड भी हो सकता है, कि जैसे कि प्रिय, है ना, बिलवेड, बिलवेड सन, बिलवेड डॉटर, बिलवेड फादर, है ना। तो अब देखिए, ये जो पहला वर्ड है डिसअपॉइंटमेंट, इसके अंदर अपॉइंट बिल्कुल सही है, रूट वर्ड। मेंट जो है वो सफिक्स है, डिस नेगेटिव प्रीफिक्स है ना। जैसे डिसहार्टेंड, डिसऑर्डरली। ऑर्डरली मतलब कि एकदम सही से रखा हुआ, डिसऑर्डरली मतलब कि अव्यवस्थित, है ना। अब फ्रेंड, फ्रेंड मतलब कि दोस्त। अनफ्रेंड, जैसे हम फेसबुक पे अनफ्रेंड करते हैं, तो अनफ्रेंड क्या हो गया कि दुश्मन टाइप का। अब अनफ्रेंडली, ली मतलब क्वालिटी लग गई, एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? विशेषता, एडजेक्टिव को विशेषता, जो किसी भी नाउन की विशेषता बताए। अनफ्रेंडली नेचर, है ना, तो उसे विशेषता बोलेंगे। नेक्स्ट इज बिलवेड, इसके अंदर बी जो है वो प्रीफिक्स है और लव जो है वो रूट वर्ड है और ईडी जो है सफिक्स है। नेक्स्ट ये बताइए, अनईजी, डिसऑनेस्टली और होमलेस, ये तो बहुत इजी है। Yes, sir. Easy is a root word. Un is a prefix. हाँ, इट्स अ नेगेटिव प्रीफिक्स। In this, अन इज yes, द sir. And नेगेटिव प्रीफिक्स। हाँ, it does not have suffix. या इट डज नॉट हैव सफिक्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट डिसऑनेस्टली। Yes, sir. Sir, honest. Honest is a root word. This is a negative prefix, and ly is a suffix. वेरी गुड। और लास्ट है And होमलेस। home is a root word. Less is the prefix suffix. ओके, वेरी गुड। Yes. ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। बिल्कुल सही। इजी मतलब Sir, is आसान। I'm visible to you? या यू आर विजिबल बेटा। Okay, sir. ठीक है, तो अब एक मिनट, हाँ तो कर लेते हैं पेन। ठीक है, तो अब आपने ये देख लिया
कि Yes. किसी भी वर्ड को हम कैसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक तो होता है रूट वर्ड, एक होता है प्रीफिक्स और Yes, सफिक्स। sir. अब नेगेटिव प्रीफिक्स जब हम लगाते हैं तो एक वर्ड का मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है ना। अब Yes, sir. ये जब हमारे दिमाग में होगा और कोई नया वर्ड हमारे सामने आएगा तो आप उसका मीनिंग कम से कम गेस तो कर पाएंगे, और आज के सेशन के बाद तो पक्का कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो Yes, वैसे sir. वैसे ये देखने में कितने डिफिकल्ट वर्ड लग रहे थे, लेकिन जब हमने इनको रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स में डिवाइड किया तो देखो इसके अंदर जो आसान से शब्द है वो अपने आप दिखने लगे। जैसे इजी का मतलब तो आप जानते ही हो, इजी का मतलब क्या होता है? आसान, आसान। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदारी, ईमानदार। और होम का मतलब घर, है ना। अब घर, हाँ. जैसे कि नेगेटिव प्रीफिक्स होता है जैसे अन, डिस, इन, वैसे नेगेटिव सफिक्स भी होता है जैसे कि होमलेस। होम मतलब जिसका घर है, और लेस मतलब जिसके पास घर नहीं है, बेघर। ठीक Yes, है बेटा, sir. ये समझ आ गया। तो जैसे नेगेटिव प्रीफिक्स होता है वैसे नेगेटिव सफिक्स भी होता है। तो Yes, नेगेटिव sir. सफिक्स भी उस मीनिंग को टोटली पलट देता है। तो जिसके पास Yes, घर है sir. तो ही इज हैविंग अ होम। होमलेस जैसे कि बेघर, जिसको जो लोग स्ट्रीट्स पे रहते हैं, जैसे अमेरिका में स्ट्रीट्स पे रहते हैं, Yes, होमलेस पीपल, राइट। तो अब आपने देख लिया ना कितना आसान है किसी भी डिफिकल्ट वर्ड को तोड़ के पहचानना। yes, sir. ठीक है। तो ये था हमारा कल का जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि हाउ टू Yes, ब्रेक डाउन वर्ड्स इनटू 3 पार्ट्स, प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट अभी स्लाइड में कि अब हम कैसे एक रूट वर्ड याद करें तो कितने सारे वर्ड्स को अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लेट मी yes. शेयर द प्रेजेंटेशन विद यू। और इसमें कोई डाउट तो नहीं जो अभी बताया? No, no, no doubt, इट इज sir. क्लियर। ठीक है, एक मिनट, लेट मी ओपन द सेकंड प्रेजेंटेशन। Sir, from ICSI module, I have printed out one book, Business Communication. So, will it be useful? या डेफिनेटली, वो भी मैं आपको डिस्कस कर लूंगा और उसी की चीजें मैं देख के पढ़ा रहा हूँ। तो बिजनेस कम्युनिकेशन Sir, की बुक है, मैं उसको yes, भी sir. खोल के दिखा दूंगा, है ना। इफ यू वांट, एक मिनट, आई विल जस्ट ओपन इट, आई Sir, आल्सो हैव दैट कॉपी। yes, sir. तो बिजनेस कम्युनिकेशन टेक्स्ट बुक, इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स, यही आपकी बुक है। Sir, और मैं, हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपने क्या इसके मॉडल क्वेश्चंस देखे? नो सर. अभी तक नहीं देखे? तो मैं एक बार मॉडल क्वेश्चंस इसके लेके और आपको मैं बता दूंगा किस तरह के आएंगे, राइट। अभी हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं ओके सर. कि इंग्लिश को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए वोकैबुलरी। तो हम लोग वोकैबुलरी से शुरू किया यस है सर. और धीरे धीरे करके फिर बाकी चीजों पे भी जाएंगे, यस है ना। सर. अब यस सर. okay, so is the screen visible now? Yes sir. Okay, so now we'll see. Now we have understood first of all what are root words, what are prefix and suffix. Okay, so Yes sir. so first of all we'll recall and summarize. So a basic word to which affixes, अब एक देखो नया वर्ड आ गया affixes, prefix suffix तो हमको मालूम था, नया वर्ड क्या आ गया? affixes. तो what are affixes? Affixes are basically prefix and suffix. तो उसके लिए एक जेनरिक टर्म है affixes. So a basic word to which affixes are added is called the root word. तो रूट वर्ड क्या है? बेसिकली एक वर्ड का भी सबसे बेसिक पार्ट है। बेसिक मतलब मूल पार्ट, मूलभूत, फंडामेंटल। Yes sir. ठीक है। सो अ बेसिक वर्ड टू विच affixes, that is prefix and suffixes, are added is called a root word because it forms the basis of a new word. मतलब उससे नया बनता है, एक नया शब्द बनता है। ठीक है। a root word is also a word in its own right. तो जैसे कि मैंने जिप था, जिप अपने आप में भी एक शब्द है ना। तो एक रूट वर्ड अपने आप में भी एक स्टैंड अलोन वर्ड हो सकता है। ठीक है। और उसके आगे प्रीफिक्स लग जाएगा तो कुछ और बन जाएगा, सफिक्स लग जाएगा तो कुछ और बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड लवली, है ना, लवली कंसिस्ट ऑफ द वर्ड लव।
एंड सफिक्स ly। तो ly क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? कि विशेषता। विशेषता। ठीक है ना, तो इट मीन्स अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारे शब्द बनते हैं। तो अब हम एक रूट वर्ड लेंगे सिर्फ, ये आप लिख लो। इस रूट वर्ड का नाम है फिड, FID, है ना, FID। इसका मतलब होता है ट्रस्ट या फेथ। तो रूट वर्ड है, और ये जो है लैटिन का, जैसे हमने बताया था ना कि हमारे सारे शब्द जो है हिंदी के वो संस्कृत से जन्मे हैं। सो इंग्लिश के सारे शब्द कहां से जन्मे हैं? ग्रीक एंड लैटिन। लैटिन एंड ग्रीक। ग्रीक। अब जो ग्रीस एक कंट्री है यूरोप में, तो उसकी जो लैंग्वेज है वो है ग्रीक। और लैटिन क्या है? लैटिन संस्कृत जैसी लैंग्वेज है, जिसमें कि सारी क्रिश्चियनिटी की बुक्स लिखी गई हैं, जैसे कि हमारे वेद पुराण सब संस्कृत में लिखे गए। तो मैं ये जो रूट वर्ड है फिड, ये क्या है? लैटिन रूट वर्ड है ना। अब मैं आपको इस लैटिन रूट वर्ड से कम 10 वर्ड्स अनलॉक करके दिखाऊंगा, है ना। और ऐसे ही करके आपको आगे करना है। ये सिर्फ एग्जांपल है। जैसे एक वर्ड हमने आप लिखा, अब आप लिख लो कॉन्फिडेंस, है ना। पहला वर्ड है कॉन्फिडेंस। अच्छा, अगर ये टाइम खत्म हो जाए तो इसी लिंक पे फिर से ज्वाइन कर लेना, है ना। ओके सर। तो पहला वर्ड है कॉन्फिडेंस। अब इसके अंदर भी जो रूट वर्ड लगा है वो है फिड। और फिड का क्या मतलब था? कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट और फेथ। तो फिड कहीं भी दिखाई देगा तो आपको पता रहना चाहिए उसका मतलब है ट्रस्ट या फेथ। तो ट्रस्ट या फेथ का मतलब क्या है? ट्रस्ट का मतलब भरोसा। तो इसमें लिखा ना मीनिंग, फर्म बिलीव इन द रिलायबिलिटी, ट्रुथ और एबिलिटी ऑफ समवन और समथिंग। मतलब कि किसी पे भरोसा करना, इसका मतलब होता है ट्रस्ट। फेथ का मतलब भी है, जैसे हमको आई हैव फेथ इन गॉड, तो आई हैव भरोसा इन गॉड ना, मतलब आई ट्रस्ट गॉड, आई रिलाई ऑन गॉड एंड आई बिलीव, आई हैव बिलीफ इन गॉड। तो ट्रस्ट और फेथ का मतलब क्या होता है? बिलीफ, रिलायबिलिटी एंड एबिलिटी टू डिपेंड ऑन समबडी। डिपेंड, किसी पे डिपेंड होना, भरोसा करना। ठीक है, तो फिड का मतलब है ट्रस्ट या फेथ, जिसका मतलब है भरोसा करना, रिलायबिलिटी। अब कॉन्फिडेंस के अंदर भी फिड लगा है, तो इसका मतलब भी आपको ये होना चाहिए कि हाँ, इसका मतलब कुछ ट्रस्ट या बिलीफ या फेथ से है। तो कॉन्फिडेंस, अब जैसे मैंने बोला कि, हाँ बोलो सर। कॉन्फिडेंस मीन्स टू हैव बिलीव इन आवरसेल्फ। सो कॉन्फिडेंस, तो फिड मीन्स ट्रस्ट, टू हैव ट्रस्ट इन आवरसेल्फ। हाँ, अब देखो कॉन्फिडेंस जो शब्द है, एक मिनट, फोन आ रहा है कोई। हाँ, अब जैसे कॉन्फिडेंस, मैंने आपको बताया ना कि इंग्लिश के एक शब्द का कम से कम 5 मीनिंग होता है। अब कॉन्फिडेंस की, एक मिनट, जब मैं फोन बंद कर दूं उसके बाद। ओके सर। एक मिनट, आई जस्ट टेक दिस कॉल, आई थिंक। ओके सर। ओके, आई एम ऑडिबल नाउ? यस सर। फाइन। तो अब जैसे मैंने बताया कॉन्फिडेंस, आपने बोला कि कॉन्फिडेंस का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी
क्या है? भरोसा, ट्रस्ट किस पे है? अपने आप पे, राइट? तो अब यही देखेंगे कि फिड लगा के वो कैसे वर्ड चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है ट्रस्ट, फेथ, डिपेंडेंस, रिलायंस या क्रेडेंस। क्रेडेंस का मतलब भी होता है भरोसा। सो आई हैव, अगर मैं बोलूं आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन नेहाज एबिलिटी टू बिकम अ सीएस, तो यानी कि मेरे को किस पे कॉन्फिडेंस है? नेहा पे, है ना? एक तो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आई हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो यहां भरोसा किस पे हो गया? अपने आप पे। अब मैं बोलूं कि आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन नेहा, तो अब किस पे ट्रस्ट और भरोसा हो गया? नेहा पे। अब मैं बोलूं कि आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन इन गॉड, आई हैव कॉन्फिडेंस इन गॉड, तो किसके ऊपर भरोसा हो गया? गॉड पे, है ना? लेकिन इसका बेसिक अर्थ तो वही है ना, ट्रस्ट, बिलीफ, फेथ, डिपेंडेंस, रिलायंस, क्रेडेंस। पर कॉन्फिडेंस किस पे है? ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, और कॉन्फिडेंस नेहा पे भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस थर्ड पार्टी पे भी हो सकता है। ठीक है? तो अब मैं, अगर मेरे को मान लो एक नया शब्द मिला जिसका नाम है कॉन्फिडेंस, और मुझको उसका मतलब नहीं मालूम, तो मुझे अगर फिड का मतलब मालूम है और मैंने इसके अंदर देखा कि अच्छा फिड लगा है, फिड का मतलब होता है ट्रस्ट या भरोसा, तो मैं इसका मतलब गेस कर सकता हूँ सेंटेंस को देख के। कर सकता हूँ कि नहीं? यस। ठीक है। अब मैंने जब कॉन्फिडेंस का मतलब देख लिया कि इसका मतलब है ट्रस्ट, बिलीफ या फेथ, और एग्जांपल है आई हैव एवरी कॉन्फिडेंस इन यू, मतलब आपके ऊपर ट्रस्ट, बिलीफ या फेथ है। अपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रस्ट का मतलब कि भरोसा, और इसका अपोजिट हो जाएगा डाउट, कि मेरे को इस पर ट्रस्ट है, या अपोजिट क्या हो गया? डाउट है इसके ऊपर। बिलीफ, बिलीफ के आगे नेगेटिव प्रीफिक्स लगा तो डिसबिलीफ, मतलब कि बिलीफ मतलब होता है कि किस चीज पे भरोसा करना, डिसबिलीफ मतलब कि भरोसा नहीं करना। फेथ, फेथ मतलब फिर से, मतलब ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको हम कहेंगे हिंदी में पर्यायवाची शब्द। ट्रस्ट का मतलब भी वही होता है, हाँ। इसको पर्यायवाची मतलब कि मिलते जुलते, और हम उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, है ना? सो ऑल दीज वर्ड्स लाइक ट्रस्ट, बिलीव, फेथ, डिपेंडेंस, रिलायंस आर सिनोनिमस टर्म्स, और सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, हाँ सिनोनिम्स। तो एंड उसके जो अपोजिट होते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटोनिम्स। विलोम, विलोम शब्द, विलोम शब्द बोलते हैं ना हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंटोनिम्स। सो इसके एंटोनिम्स क्या है? डाउट, डिसबिलीव, डिस्ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के आगे मैंने नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दिया डिस, तो डिस्ट्रस्ट बन गया, है ना? तो ऐसे करके ये सारे वर्ड्स बन गए। हाँ बोलिए। डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? मिसट्रस्ट मतलब कि रॉन्गली प्लेस्ड ट्रस्ट, एंड डिस्ट्रस्ट मतलब कि टोटली भरोसे की कमी, है ना? रॉन्गली प्लेस्ड ट्रस्ट या भरोसे की कमी। मिसट्रस्ट मतलब रॉन्गली प्लेस्ड ट्रस्ट, एंड डिस्ट्रस्ट इज भरोसे की कमी। ठीक है? अब हम दूसरा, अब कॉन्फिडेंस का पहले मैंने बता दिया कि भरोसा होना किसी पे भी, है ना? गॉड पे, किसी सेकंड पर्सन पे। सेकंड इसका मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने बोला ना कि आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ, तो फिर वो क्या बन जाएगा? लेकिन उसके अंदर ट्रस्ट और फेथ तो है ही, लेकिन यहां पर किसमें है? सेल्फ अश्योरेंस, करेज, हाँ, अपने आप के ऊपर। तो इफ आई हैव कॉन्फिडेंस, इफ आई हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, देन इसका मतलब क्या है? कि आई हैव करेज, आई हैव सेल्फ अश्योरेंस। इसका सिनोनिमस टर्म्स है अपलॉम, अश्योरेंस, बोल्डनेस। बोल्डनेस तो आपने सुना ही है ना? पहले में था रिलायंस, यहां पर क्या हो गया? सेल्फ रिलायंस, अपने आप के ऊपर भरोसा, सेल्फ पोजेशन। लेकिन इस सबका मतलब भी ट्रस्ट और फेथ से ही है। जो हमने पिछली वाली स्लाइड देखी ना, फिट लगा है मतलब ट्रस्ट या फेथ, पर यहां पर किसके ऊपर है? अपने आप के ऊपर। यस सर। अब नेक्स्ट है, अब जब हाँ, अब जब मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करी कि एक बंदे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे नेहा के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है और एक और बंदे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यानी कि उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर फियर हुआ, डर, अनसर्टन हुआ वो। अगर बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस होता तो वो सर्टन होता ना, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो अनसर्टन हो जाता है। एप्रीहेंशन भी इसका सिनोनिमस टर्म है, यानी कि डर। डाउट विल बी आल्सो, डाउट, यस, डाउट भी, बिल्कुल, सेल्फ डाउट। और यहां पर बोल्ड था और यहां हो गया शाई, अपोजिट हो गया ना। बोल्ड का अपोजिट क्या है? शाई। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सिनोनिमस है, लेकिन
जो पहले वाले जो शब्द थे उसके एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स। यस सर। ठीक है, तो यस सर। कॉन्फिडेंस के अंदर फिड रूट वर्ड लगा है, तो फिड का मतलब होता है ट्रस्ट और भरोसा। तो पहला इसका शब्द का मतलब है कॉन्फिडेंस ऑन समबडी लाइक गॉड और सम XYZ पर्सन। दूसरा मतलब है अपने आप के ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहां पर भी ट्रस्ट और बिलीफ है, लेकिन किस पे है? सेल्फ के ऊपर। सेल्फ। अब देखो इसका यस तीसरा सर। मीनिंग क्या है कॉन्फिडेंस का, कि इफ आई से समथिंग इन कॉन्फिडेंस टू यू, इफ आई से समथिंग इन कॉन्फिडेंस टू यू, मतलब कि मैं आपको कोई सीक्रेट बात बता रहा हूं। तो सीक्रेट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आई ट्रस्ट यू। यहां भी ट्रस्ट और भरोसा है। तो अगर मैं आपको कोई, जैसे मान लो कोई सरकारी आर्मी से रिलेटेड कोई गोपनीय बात बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आई ट्रस्ट यू। तो तीसरा कॉन्फिडेंस का मतलब है सीक्रेट। तो आई एम नॉट इन अ हैबिट ऑफ एक्सचेंजिंग कॉन्फिडेंसेस विद अदर पीपल। यहां क्या मतलब है? प्राइवेट इंफॉर्मेशन। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? यानी कि किसी चीज के बारे में सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब गोपनीयता। ठीक है, Yes, तो sir. अब सीक्रेट बात हम किसको